Hello students, good morning. Today we are going to learn chapter number 1, computer hardware. In previous video we learn about the many types of devices, input devices, output devices and central processing unit CPU. Okay, now today we are going to learn about memories. Let's move to slide number 2. Memories. Every computer has a memory where information can be stored either temporarily or permanently. A computer has two types of memory: internal memory and external memory. First, every computer has a memory where information can be stored either temporary or permanent. सारे कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर के लिए मेमोरीज दी जाती है, मेमोरी दी जाती है, जिसके अंदर हम टेम्पररी और परमानेंट दोनों तरीके से हम हमारी इंफॉर्मेशन डेटास हम स्टोर कर सकते हैं. A computer has two types of memory: internal memory and external memory. Computer has two types of memory. Now, first we are going to learn about internal memory. Internal memory, also called primary memory, holds data and instruction for the computer to work on. It can be quickly accessed by the CPU. Internal memory is of two types. Okay, first one is internal memory, also called primary memory, holds data and instruction for the computer to work on. हम अगर कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस डेटा वो स्टोर होती है कंप्यूटर के अंदर दी गई इंटरनल मेमोरी के अंदर. वो उसको होल्ड करता है और उसके बाद उसके ऊपर वर्क करता है. इट कैन बी क्विकली एक्सेसेड बाय द CPU. वो बहुत ही जल्दी वर्क करता है किसके ऊपर? CPU के ऊपर. ओके, देन इंटरनल मेमोरी हैज़ अ two types. First is RAM and second is ROM. Okay, look at the picture. So this picture is RAM. Okay, what is the full form of RAM? Yes, random access memory. This is the full form of RAM. Okay, now we are going to learn about RAM. What is a RAM? Stores information temporary while the computer is working. Stores information temporary while the computer is working. First topic is the operating systems and any software that you are not loaded into the RAM. The operating systems and any software that you run are loaded into the RAM. This is information is erased as soon as you turn off the computer. Yes, the operating systems and any software that you are not loaded into the RAM. हम काफ़ी सारी ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स है, सॉफ्टवेयर है जो रैम के ऊपर लोडेड नहीं कर सकते. वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रैम के ऊपर से बहुत ही जल्दी इरेज हो जाती है. जैसे कि हमने कंप्यूटर के ऊपर कोई भी वर्क किया है, अगर वो हम सेव नहीं करते स्टोरेज में, तो जैसे ही अगर कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाएगा तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से डिलीट हो जाएगी. ओके,
Okay, second one is ROM. What is the full form of ROM? Read only memory. Read only memory. Stores information that can be read but cannot be changed. Yes, स्टोर्स की इंफॉर्मेशन जो हमने स्टोर्स किया है इंफॉर्मेशन, वो हम देख तो सकते हैं लेकिन उसे हम चेंज नहीं कर सकते। जो इन्फॉर्मेशन हमने रोम में सेंड की है, रोम में सेव की है, स्टोर की है, वो इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकते हो लेकिन उसे चेंज नहीं कर सकते। ओके, फर्स्ट टॉपिक इज the startup instruction that prepare the computer for use are stored here. ओके, आपने जो कंप्यूटर के अंदर स्टार्टअप से जो इंस्ट्रक्शंस प्रिपेयर की है, जो कंप्यूटर के अंदर आपने जो फाइल बनाई है, वो सारी की सारी फाइल कहाँ पे स्टोर होती है? रोम के अंदर। ओके, सेकंड टॉपिक इज द प्रोग्राम्स दैट चेक द प्रॉपर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स पार्ट्स आर ऑल्सो स्टोर्ड हियर। कौन से स्टोर पार्ट्स यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं हम? द प्रोग्राम दैट चेक द प्रॉपर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स आर ऑल्सो स्टोर हियर। यस, कंप्यूटर पार्ट्स की जो हमने प्रॉपर वर्किंग किया है वो सारी की सारी स्टोर्स कहाँ पे होती है? रोम के अंदर। दिस इंफॉर्मेशन इज रिटेन्ड इवन व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देंगे तो भी हमें ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिल जाएगी? रोम के अंदर। यस, सो दिस इज अ इंटरनल मेमोरी टाइप्स। फर्स्ट वन इज रोम, RAM, and second one is ROM. Okay, now let's move to slide number 3. Okay, there is a two types of memory, internal and external. Internal memory we have a two types, RAM and ROM. Now external memory. External memory, also called secondary memory, is used to store information permanently. एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर भी हम इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। इट डज नॉट गेट इरेज व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। अगर कंप्यूटर टर्न ऑफ भी होता है तो भी वो इंफॉर्मेशन वहाँ से इरेज नहीं होती है। ओके, Okay, topic number 3. Programs and data are normally stored in the external memory. हम जो प्रोग्राम्स और डेटा अगर जो भी हम स्टोर करते हैं वो नॉर्मली कहाँ पे स्टोर होता है? एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर। ओके, व्हेन यू वांट टू रन अ प्रोग्राम इट इज़ फर्स्ट कॉपी इनटू द इंटरनल मेमोरी फ्रॉम वेयर इट कैन बी क्विकली एक्सेस बाय द CPU. व्हेन यू वांट टू रन अ प्रोग्राम, अगर हम कोई भी प्रोग्राम रन करना चाहते हैं तो उसकी फर्स्ट कॉपी वो कहाँ पे स्टोर होती है? इंटरनल मेमोरी के अंदर। एंड देन वो इंटरनल मेमोरी के अंदर जो भी हमने इंस्ट्रक्शन या जो भी प्रोग्राम रन करने के लिए दिया है वो एक्सेस कैसे करेगा? CPU के अंदर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटर्नल मेमोरी इज in the form of devices called storage devices which can be connected to the computer. External memory is from devices called storage devices. external memory को हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? storage devices भी कह सकते हैं, जो कनेक्टेड किससे होती है? कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के साथ। ओके, नाउ लेट्स मूव टू स्लाइड नंबर 5. there is a so many storage devices in your book. You have to see a lots of storage devices are there. Okay, now first one is hard disk. Okay, hard disk. A hard disk is the main storage device of a computer. hard disk, हम जितनी भी चीज़ें, जितनी भी प्रोग्राम, जितने भी डेटा, जितने भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी फाइल अगर हम सेव करते हैं तो वो कहाँ पे सेव होती है?
कंप्यूटर के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर। इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। हार्ड डिस्क के अंदर हम काफ़ी सारी डेटास, बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टोर कर सकते हैं हार्ड डिस्क के अंदर। इट इज़ फिक्सेड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। वो कहाँ पे फिक्स होती है? सीपीयू बॉक्स के अंदर। यस, कहाँ पे? सीपीयू बॉक्स के अंदर। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क which are smaller in size are also available। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क छोटी साइज की भी अवेलेबल है। दिस कैन बी कैरिड अलोंग विथ यू। वो हार्ड डिस्क को आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। ओके, नाउ सेकेंड स्टोरेज डिवाइस इज कॉम्पैक्ट डिस्क। यस, एवरीवन नो अबाउट दिस। अ सीडी। A CD is a thin, round, flat and shiny disk that can store text, graphics, sound, images and videos. Yes, CD, compact disc is thin, rounded, flat and shiny disk जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, इमेजेस एंड वीडियोस स्टोर कर सकते हैं। टू एक्सेस डेटा फ्रॉम अ सीडी, you have to insert it into the CD drive, normally located in the front panel of the CPU box। अगर आपको सीडी को एक्सेस करना है, उसके अंदर के डेटा को देखना है, तो उसे हमें क्या करना होगा? सीडी ड्राइवर के अंदर डालना होगा। और नॉर्मली ये सीडी ड्राइवर कहाँ पे आता है? सीपीयू बॉक्स के पैनल के फ्रंट साइड, आगे की ओर आता है। नाउ लेट्स मूव टू स्लाइड नंबर 5। ओके, नाउ the next storage device is digital video disc, is a DVD। okay, this is a similar to the CD। a DVD is a similar to a CD in shape and size but can storage large amount of data। its largest capacity allowed in to store high quality video, films and audio tracks। in CD you have to storage device of small sizes, and in DVD there is a largest capacity of storage। yes, so this is a only one differences of CD and DVD। okay, next storage device is Blu-ray disc। Blu-ray disc, a Blu-ray disc is similar to CD or a DVD in shape and size। Blu-ray disc सिमिलर है CD और DVD की शेप और साइज के मैटर में। इट्स नेम कम्स फ्रॉम द ब्लू वायोलेट लेजर्स दैट इज यूज्ड टू रीड एंड राइट डेटा इन इट। ब्लू-रे डिस्क, ये नाम कहाँ से आया है? ब्लू वायोलेट लेजर के ऊपर से, जो क्या काम करता है? राइट अ डेटा and read a data। okay, it has a much higher storage capacity than a DVD। yes, first one is CD। the CD is a small capacity of storage, then DVD is a large capacity of storage, and now Blu-ray disc is a high storage capacity than a DVD। yes, now next storage device is flash drive। we also know about the flash drive is pen drive, the second name is। okay,
A flash drive is a very convenient portable storage device. It is small in size and easy to carry around but can store large amount of data. Pen drive. Pen drive. It's a portable storage device. Okay. It is small in size. पेन ड्राइव साइज में कैसी है? छोटी, लेकिन उसके अंदर हम काफ़ी सारे डेटास और प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं. टॉपिक 2. टू स्टोर और एक्सेस डेटा यू हैव टू प्लग it into the USB port of the computer. What is the full form of USB? Universal Serial Bus. Yes. To store or access data, you have to plug into the USB port of the computer. अगर पेन ड्राइव के अंदर जो डेटा है उसको हमें देखना है तो उसे हमें कहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, कहाँ पे प्लग करना पड़ेगा? कंप्यूटर के अंदर, जहाँ पे USB का पोर्ट दिया गया है. ओके. यू कैन यूज अ फ्लैश ड्राइव टू स्टोर डेटा एंड ऑल्सो टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. पेन ड्राइव की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हमारे अंदर जो कंप्यूटर के अंदर हमने जो कोई डेटा बनाया है उसको हम कॉपी करके पेन ड्राइव के अंदर डाल के फिर उसे हम किसी भी दूसरे कंप्यूटर के अंदर पेस्ट कर सकते हैं. हम उसके वो सारे के सारे डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. यस, देयर इज़ वन ऑफ द यूजेस ऑफ पेन ड्राइव. ओके, नाउ लेट्स मूव टू स्लाइड नंबर 6. सो दिस इज योर last storage devices, a memory card. We all are know about this. A memory card is a store medium for devices such as call, phones, digital cameras and music player. A memory card. मेमोरी कार्ड बहुत ही छोटी साइज़ का है और उसे हम कहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं? फ़ोन्स के अंदर, डिजिटल कैमरास के अंदर एंड म्यूजिक प्लेयर के अंदर. यस, मेमोरी कार्ड इज स्टोरेज मीडियम फॉर डिवाइसेस. ओके. सेकंड वन इज डेटा स्टोर्ड इन इट कैन बी ट्रांसफर टू अ कंप्यूटर. जो मेमोरी के अंदर डेटा दिया गया है, जो डेटा है, उसे हम कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं. दिस इज़ अ नॉर्मली डन बाय इंसर्टिंग इट इनटू अ मेमोरी कार्ड रीडर एंड कनेक्टिंग द रीडर टू द कंप्यूटर थॉट अ USB केबल. अगर हमें मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर के अंदर उसके डेटा लेने हैं तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट हमें मेमोरी कार्ड का रीडर लेना पड़ेगा. वो रीडर के अंदर हम मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करके फिर उसको हम USB केबल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली हम उस रीडर को भी कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर. देन हम काफ़ी सारी चीज़ें जो डेटा दी गई है अंदर, वो सारी की सारी डेटा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 1, memories, internal memories, external memories, and there is a lots of storage devices. Yes. Okay. There is a two types of memory, internal memory and external memory. Internal memory has a two types, RAM and ROM. External memory, and there is a storage devices. So many storage devices: hard disk, computer disk, digital video disk, DVD, Blu-ray disc, flash drive, pen drive and memory card. Okay children, so this is your chapter number 1 completed here.
Now we are learn about next chapter in our next video. Okay, bye bye, thank you.